Okay, so now we'll see how to add rows in a table. You can add rows in your table to insert additional information. For example, we had to in the example which is given in your book, there are weekdays: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Okay, and certain information regarding that is also given to you. I guess the timings are given. Okay, now click on the row where you want to add another row. You have to select the area where you want to add another row. If you select more than one row, Word duplicates the number of row when you activate insert command. Okay, if suppose that you don't want to you don't want you want more than one rows. Okay, so you will जो the word program है, it automatically duplicates the numbers when you activate insert command. Then you have to click on layout tab. You can click insert above or insert below button to add new rows. Now what is the function of insert above and insert below button? Okay, so when you will choose insert above, the rows will be added above the area where you have selected, where you have selected to add more rows. And when you will choose insert below button, the new rows will be added below the selected area. Okay, so this is the function, or you can say the use of insert above or insert below button. Now in this example, we have inserted a row above the selected row. uh, in the example which is given to you in the book, जहाँ पे हमने मंडे के साइड में we wanted to add new row, तो when we will choose the place beside Monday, तो and then we will click on insert above. Why? Because we want to add new row above this Monday row. Okay, so when you will choose this, the new row will be added above the first row of the table, that is your Monday row. Okay, so these are the steps of adding rows in the columns. Now we'll see how to add columns in the row. The process is quite similar. Okay, as you have selected the row place where you wanted to add new row, now in this in this adding of column to a table, you will select the column. आप कॉलम एरिया में सेलेक्ट करोगे जहाँ पे आपको न्यू कॉलम चाहिए. तो दिस इज़ द ओनली डिफरेंस बिटवीन एडिंग अ रो इन द टेबल और एडिंग अ कॉलम in the table. For that, you can add columns in your table to insert additional information. Click on the column where you want to add another column. Okay, suppose you want another column to be added again along Monday. ठीक है, तो if you will select more than one column, Word duplicates the number of when you will activate insert command. Suppose that if you want to add more than two rows, more than one row, तो जितने भी आपको more than two columns or more than three columns, तो जितने भी columns आपको चाहिए according to your choice. ठीक है, जो word है उसको वो ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट कर देता है. दैट मीन्स वो जो नंबर है वो वर्ड ऑटोमेटिकली इंक्रीज करता है. ओके, now you have to click on the layout tab. From there you will choose the option insert left or insert right. ठीक है, हमने रो में पढ़ा था कि रो जो होती है वो अबव या बिलो इंसर्ट होगी, जो कॉलम है वो लेफ्ट और राइट की तरफ में इंसर्ट होगा. ठीक है, क्योंकि जो रो होती है उसकी अरेंजमेंट कैसी होती है, एक स्लीपिंग लाइन, एक हॉरिजॉन्टल उसकी अरेंजमेंट होती है. बट कॉलम की अरेंजमेंट कैसी होती है, कॉलम की अरेंजमेंट स्टैंडिंग लाइन पोजीशन में होती है. तो जब आप कॉलम को इंक्रीज़ करोगे तो आप लेफ़्ट से राइट मूव करोगे, और जब आप रो को इंसर्ट करोगे तो आप अबव और बिलो मूव करोगे. ओके, नाउ वर्ड एड्स अ कॉलम टू द टेबल. फिर जैसे ही आप इंसर्ट लेफ्ट या राइट का ऑप्शन चूज़ करोगे, तो जो एरिया आपने चूज़ किया है, सपोज दैट हमने मंडे के जो न्यू रो हमें चाहिए वो मंडे के राइट हैंड साइड पे आई है. ठीक है, तो आप इंसर्ट राइट पे क्लिक करोगे, तो जैसे ही आप इंसर्ट राइट पे क्लिक करोगे, मंडे जो मंडे वाली रो है उसके बगल में यू विल सी अनदर न्यू रो. ओके, सपोज दैट मुझे ये जो न्यू रो हमने ऐड की है ये मुझे लेफ्ट साइड में चाहिए होती, तो आई वुड हैव चूजन इंसर्ट राइट. ओके, now word adds column to the table. When you add columns, the word decreases the size of other columns to accommodate the new column but retains the overall size of the table.
एज इन जैसे आप अपनी कॉपी में टेबल खींचते हो, उसमें आप अगर एक नए कॉलम को ऐड करोगे तो जो बाकी स्पेस होती है कॉलम्स की वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है ऑब्वियसली, बट जो ओवरऑल हमने टेबल बनाया है उसमें कोई चेंज नहीं आता। बस चेंज कहाँ आता है, जो हमने पहले से कॉलम्स बनाए होते हैं उनका साइज़ थोड़ा सा कम हो जाता है एक नई रो को, एक नए कॉलम को ऐड करने के बाद। बट ये केस जो है ये कॉलम रोज़ में क्यों नहीं होता, क्योंकि जैसे अगर आप अपनी कॉपी का ही एग्जांपल लो तो कॉपी में आप नीचे की साइड मूव कर सकते हो, पर जो विड्थ होती है, जो साइड एरिया होता है, उसको हम इंक्रीज़ नहीं कर सकते। अगर हम उसको इंक्रीज़ करेंगे तो हम कॉपी के बाहर लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। दैट इज़ नॉट द केस। तो रो जब भी कोई कॉलम ऐड होती है तो टेबल का ओवरऑल साइज़ तो सेम रहता है, बट जो बाकी कॉलम्स पहले से होते हैं उनका साइज़ थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, ओके, वेन एवर वी ऐड अ न्यू कॉलम। Now, deleting a row or a column in the table. As we have added a new row, जैसे हमने एक नई रो को ऐड किया है वैसे ही हम एक रो या कॉलम को डिलीट भी कर सकते हैं। सो व्हाट आर द स्टेप्स? यू कैन डिलीट अ रो और अ कॉलम यू नो लॉन्गर नीड फ्रॉम योर टेबल, ठीक है। अब हम जो एक्स्ट्रा हमारी रो है हम उसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट अस सेलेक्ट, जो हमने पिछले पेज में रो ऐड की थी अब हम उसी को डिलीट करना सीखेंगे। Now deleting a row. Select a row you want to delete by placing the mouse pointer to the left of the row and click. जैसे हमने the same is the process we applied to add a new row. We have clicked on the left side of the row to select the row, ठीक है। इसी तरह से आप रो के लेफ्ट साइड में क्लिक करोगे, you will click on the layout tab, then from there you will choose delete button. जैसे insert button, all the process is same, that you have to click on the right साइड ऑफ द रो, फिर आपको लेआउट टैब में जाके इंसर्ट आपने ऑप्शन यूज़ किया था टू ऐड अ रो। तो अब जब एडेड रो को डिलीट करना है तो आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करोगे? यू विल चूज़ डिलीट बटन, ठीक है। आप जैसे डिलीट बटन को चूज़ करोगे तो जो एक्स्ट्रा रोज़ हैं जो आपने सेलेक्ट की थी टू बी डिलीटेड वो डिलीट हो जाएगी। वर्ड रिमूव्स द रो ऑन रो एंड द टेक्स्ट इट कंटेन फ्रॉम द टेबल। जो भी रो होगी उसके अंदर आपने जो भी टेक्स्ट टाइप किया होगा, जो भी इंफॉर्मेशन दी होगी वो भी रो के साथ डिलीट हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो वो बॉक्स डिलीट होगा और उसकी इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ रहेगी, नो, द रो विद अलॉन्ग विद द टेक्स्ट रिटन इन दैट रो दैट विल ऑल्सो बी डिलीटेड। नाउ नेक्स्ट इज डिलीटिंग अ कॉलम, ओके। जैसे हमने कॉलम को ऐड करने के लिए टॉप बॉर्डर पे क्लिक किया था टू सेलेक्ट द कॉलम, सिमिलरली वी विल सेलेक्ट द कॉलम बाय क्लिकिंग by placing the mouse pointer on the top column and click on the layout tab, then click on the delete button. फिर again you will go to the layout tab and from there you will click on the delete button. तो आप delete button पे क्लिक करोगे तो जितनी भी columns हैं which you have selected to be deleted वो delete हो जाएंगे। Word removes the column and the text it contained from the table, okay. Now changing the height of a row. Now changing the height of the row. What do you mean by height of the row? By height of the row I mean the width of the row, कि जो एक हमारी पर्टिकुलर रो है उसकी विड्थ, उसकी चौड़ाई कितनी है, ठीक है। सपोज आई वांट टू राइट नॉट ओनली अ सिंगल वर्ड बट अ कंप्लीट सेंटेंस इन अ पर्टिकुलर रो, तो ऑब्वियसली आई वुड नीड मच मोर स्पेस इन दैट पर्टिकुलर रो। तो अब हम उसको रो की जो साइज़ है उसको कैसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करेंगे? यू कैन चेंज द हाइट ऑफ द रोज टू अकोमोडेट योर टेबल इंफॉर्मेशन। अकोमोडेट मतलब कंटेन, ठीक है। तो इफ़ आई वॉन्ट टू पुट मोर इन्फॉर्मेशन इन अ पर्टिकुलर रो देन आई हैव टू चेंज द साइज ऑफ द रो, ठीक है। नाउ वट हाउ विल डू दैट? You have to place your mouse pointer over the bottom edge of the row you want to change to a new height, ठीक है। आप now when we have to change the height of the row you have to place your mouse pointer over the bottom edge of the row you want to change to a new height, ठीक है। आपको बॉटम एज मतलब एज मतलब होता है किनारा, ठीक है। नीचे वाले किनारे पे जिस रो की आपको हाइट चेंज करनी है आप उस पर अपना माउस पॉइंटर रखोगे। जो माउस पॉइंटर है उसका जो सिंबल है दैट विल चेंज, जैसा कि आपकी बुक में दिखा है, एक डबल साइडेड एरो, बीच में एक इज इक्वल टू, लॉन्ग इज इक्वल टू एंड अ डबल साइडेड एरो।
जैसा ही वो सिंबल आपको दिखेगा यू हैव टू ड्रैग द रो एज टू अ न्यू पोजीशन। फिर आपको जो आपकी रो का किनारा है उसको ड्रैग करना है। द डॉटेड लाइन शोज द न्यू पोजीशन। फिर आपको स्क्रीन पे एक डॉटेड लाइन दिखेगी, वो आपको आपकी रो की नई पोजीशन बताएगी। ठीक है, तो जैसे ही आपने ये ड्रैगिंग है वो आपने डिज़ायर्ड स्पेस के अकॉर्डिंग अपने कर ली टू अकोमोडेट योर इन्फॉर्मेशन, देन यू हैव टू रिलीज योर माउस पॉइंटर। तो एज सुन एज यू विल रिलीज योर माउस पॉइंटर, जो वर्ड है वो रो की हाइट को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा। ओके, सो व्हाट आर द स्टेप्स कि आपको जो बॉटम एज है रो के जिसकी हाइट को आपको चेंज करना है, यू हैव टू प्लेस योर माउस पॉइंटर देयर। फिर आपका एक डिफरेंट सिंबल यू विल सी। सिंबल कैसा होता है? डबल साइडेड एरो और उसके मिडिल में यू विल सी एन इज इक्वल टू, लॉन्ग इज इक्वल टू। ठीक है, दैट इज़ द सिंबल। जैसे ही वो सिंबल आएगा यू हैव टू ड्रैग द रो एज टू अ न्यू पोजिशन। रो का जो किनारा है उसको आपको ड्रैग करना है, मतलब खींचना है। ठीक है, तो जितनी जो आपको पोजीशन चाहिए, ठीक है, द साइज ऑफ द ब्लॉक यू विल डिसाइड योर सेल्फ। तो जैसे ही आप ये ड्रैगिंग करोगे यू विल सी अ डॉटेड लाइन इन अ न्यू पोजिशन। ठीक है, देन एज सुन एज यू विल सी द डॉटेड लाइन यू हैव टू रिलीज द माउस पॉइंटर। तो जो वर्ड की जो हाइट है वो ऑटोमेटिकली विल गेट चेंज टू द न्यू हाइट। ओके, नाउ हाउ विल यू चेंज द विड्थ ऑफ द कॉलम? ठीक है, रो की हम हाइट बढ़ाते हैं और कॉलम की हम लोग विड्थ बढ़ाते हैं। विड्थ इज़ योर ब्रेथ और योर चौड़ाई, हाइट इज़ योर लंबाई एंड विड्थ इज़ योर चौड़ाई, और यू मे से दैट ब्रेथ। ओके, you can change the width of the column to improve the layout of your table to accommodate your table information. Similarly, अगर हमें अपने particular column में we have to put more than one हमें कुछ ज़्यादा information देनी है और हमारी जो space है वो कम है, तो we will increase the space. Okay, now in terms of width, as far as this column is concerned, you have to place your mouse pointer over the edge of the column you want to change to a new width. ठीक है, आपको अपने माउस कॉलम की एज को चेंज करना है टू अ न्यू विड्थ। नाउ द माउस पॉइंटर changes, the mouse pointer will change again to that different symbol. The symbol is double sided arrow, जिसके बीच में you will see a long equal to mark. You have to drag the column edge to the new position. फिर आपको जो अपना column edge है उसकी new position पे उसको drag करते जाना. Again you will see a dotted line. जैसे ही आपको डॉटेड दिखेगी और आपने ये देखा कि आपकी जो कॉलम की विड्थ है वो इंक्रीज हो रही है, देन यू हैव टू रिलीज योर माउस पॉइंटर। जो वर्ड है वो कॉलम की विड्थ को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा। Okay, so these were the steps by following which we can increase the height of the width of the column. ठीक है, अगेन आई एम टेलिंग कि रो की आप हाइट इंक्रीज करते हो और कॉलम की आप विड्थ इंक्रीज करते हो। Okay, so this was it for this class. We'll continue further in the next class. Thank you everyone.